So hello everyone, welcome to Eye Contact Lat preparation. This is Ayush and you're watching Eye Contact Lat. So students, I hope that you guys are doing really good. You guys are absolutely fine and studying really hard because hardly now 1 month is left for our CLAT 2026 examination and we got no time to waste at all, right? सो ये वही टाइम होता है स्टूडेंट्स जब हमको सबसे ज़्यादा पुश की रिक्वायरमेंट होती है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करने का टाइम होता है और जो हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट हमें करना है वो किस चीज़ पे करना है प्रॉपर थॉरो रिवीजन में और प्रैक्टिस में बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग न्यू और व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू टॉपिक्स अभी वो टाइम जा चुका है दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग प्रॉपरली एंड ये नहीं कि आप सब कुछ रिवाइज कर रहे हो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ हाईली रिलेवेंट फॉर योर क्लैट 2026 एग्जामिनेशन आपको अपना सारा टाइम अभी वहाँ फोकस करना है बिकॉज देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू lot of things to revise. We have got 5 sections and across those 5 sections we have numerous topics as well and hardly 1 month is left now, right? Only 29 days. So we need to utilize our time wisely and the best way to do is कि हम लोग जब रिवीजन पार्ट पे जा रहे हैं ना तो सिर्फ उतना रिवाइज करें जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि आप पूरे टॉपिक को फिर से रीड कर रहे हो या री एनालाइज कर रहे हो दैट दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट दिस इज द टाइम टू जस्ट स्टिक टू योर मेन पॉइंट्स द बुलेट पॉइंट्स एंड जस्ट revise the most essential and most important part for your CLAT 2026 examination, right? So just keeping the same thing in mind, today we'll be doing a topic from constitutional law, one of the most important topic for your CLAT exam, and within that topic we are gonna do डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो व्हाट वील बी डूइंग हियर इज कि हम लोग इसको रिवाइज करेंगे डीपीएसपीस क्या होता है थोड़ा सा इसको बेसिक समझेंगे हमारे लिए जो क्लैट 2026 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी में वो डिस्कस करेंगे उसकी रेलेवेंस डिस्कस करेंगे राइट एंड देन किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आज के सेशंस में हम वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड एंड डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल बिकॉज वी विल बी ब्रिंगिंग मोर सच रिविजन वीडियोज मोर सच प्रैक्टिस वीडियोज. So make sure कि you are not missing out from any of those videos or the sessions which we are gonna do in the upcoming days, right? So with this, let's begin with our topic. So the topic is डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अभी क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या रेलेवेंस होता है इसका क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी कौन सी सेक्शन में है कौन से आर्टिकल में प्रोवाइडेड है. सो वी आर गोना टेक अ लुक एट एवरीथिंग. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो DPSPs are basically the goals and directions that are given to the state. State कौन सा होता है? State that is provided under Article 12. जो state की definition Article 12 में provided है वो यहाँ पे applicable होगी ना कि आपका राज्यों वाला state. So DPSPs are basically the goals and directions given to the state to ensure social and economic justice. Right? They are like to do list for the government. ये government के लिए to do list होती है. So basically students DPSPs क्या होता है basically they are provided under under part 4 of the Indian Constitution from Article 36 to Article 51. Part 3 of the Indian Constitution it talks about fundamental rights from Article 12 to Article 32 35 right. तो fundamental rights में हमने क्या देखा था कि they are justiciable, they are enforceable. Nobody can abridge your fundamental right. If you are abridged from your fundamental right, you can go to the court to make sure कि court आपके fundamental rights को enforce कराए. So fundamental rights are justiciable in nature. अब part 4 of the Indian Constitution it talks about directive principles of state policy which is provided under Article 36 to Article 51. अब DPSPs क्या होता है बेसिकली DPSPs आर नॉन जस्टिसिएबल. मतलब अगर DPSPs को गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जा करके उसको एग्जीक्यूट करवा पाओ या उसको जस्टिसिएबल आप करवा पाओ नहीं करवा पाओगे बिकॉज DPSPs आर नॉन जस्टिसिएबल. दे आर बेसिकली जस्ट द गाइडलाइंस टू द स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट कि आप लोग जो भी लॉज बनाओ जो भी कानून बनाओ वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाओ ठीक है. बट अगर गवर्नमेंट उस पॉइंट पे काम नहीं कर रही है तो आप कल को गवर्नमेंट को कोर्ट में नहीं ड्रैग करके ले जा सकते हो कि आप ये प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहे हो बिकॉज दीज आर जस्ट गाइडलाइंस. दीज आर नॉट मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू फॉलो दीज गाइडलाइंस राइट. तो बेसिकली DPSPs क्या होता है DPSPs आपका गाइडलाइंस है. कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन गाइडलाइंस दी हुई है कि गवर्नमेंट जब लॉज बनाए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए. अभी वो क्या चीज़ें हैं
कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वो अभी हम सब लोग अभी ये सारा देखेंगे. तो बेसिकली एज आई जस्ट मेंशन दैट दे आर लाइक टू डू लिस्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल. यही इसको डिफरेंट बनाता है फंडामेंटल राइट्स से. दे आर एनफोर्सेबल but DPSPs, they are not enforceable. Remember this. So this basically means that you can't go to the court if they are not followed, but they are fundamental in the governance of the country. Nonetheless, बेशक ये justiciable ना हो, लेकिन देश को चलाने के लिए, देश की governance के लिए ये बहुत important है. They are fundamental in the governance of the country. So DPSPs basically are the guidelines or directions that are given to the state to establish social, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो प्रीएम्बल है इनफैक्ट, वो किस तरीके की इक्वालिटी की बात करता है. इट टॉक्स अबाउट सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल जस्टिस, राइट. तो हमारा जो DPSPs है, ये वही गाइडलाइंस हैं जो स्टेट को दिया हुआ ताकि इन चीज़ों को स्टेट इस्टेब्लिश कर पाए. अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. सो दे आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में हमारे DPSPs है, ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. फाइन. देन दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल. ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, यानी कि अगर कोर्ट में अगर ये फॉलो नहीं हो रहे तो आप कोर्ट में जा करके इसको फॉलो नहीं करवा पाओगे, ठीक है. बट नॉनदलेस दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. फाइन. They guide the government in making laws and policies that promote the welfare of the people, right? So what you have to remember is that fundamental rights protect the individual and DPSPs, they guide the state, right? जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको एज एन इंडिविजुअल प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो इक्वालिटी का अधिकार है, आपके ट्रैवल करने का अधिकार है, आपकी शिक्षा का अधिकार है, आपको जो रिलीजन आप मानना चाहते हो वो मानने का जो अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स. लेकिन जो हमारे DPSPs है, ये स्टेट को गाइड करता है. स्टेट मीन्स कि नॉट योर राज्य बट द गवर्नमेंट, ठीक है. मीन्स एनी एंटिटी विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 में जो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दे रखा है स्टेट का, वो सब इसमें कवर होगा. तो बेसिकली DPSPs आर लाइक गाइडलाइंस टू द स्टेट. देन मूविंग अहेड, सो फ्रॉम एज वी ऑल नो कि हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोस्टली जो प्रोविजंस हैं वो हमने बाहर से लिया हुआ है. सर्टेन प्रोविजंस वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका एज वेल, जर्मनी एज वेल, एंड देन फ्रॉम दिस, तो यूके से है, जर्मनी से है, देन जापान से भी है, एंड देन फ्रांस से भी हमने ले रखा है. काफ़ी सारा हमने क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पे काम कर रहे थे तो उन्होंने वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था जो उस टाइम की बड़ी डेमोक्रेसीज थी, उन सब के कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू किया था, और उनमें से वो जो एलिमेंट्स जो हमारे लिए भी फायदेमंद थे और एप्लीकेबल थे उनको एंटर किया था, राइट. तो उसी फ्लो में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था, इसका ओरिजिन था फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. DPSPs were borrowed from the Irish Constitution in the year 1937. Fine. Then the aim of this directive principle of state policies, ये इसका aim क्या था रखने का constitution में? To create a welfare state. ये नहीं कि एक बहुत ही ज़्यादा कैपिटलिस्टिक अप्रोच बन जाए कंट्री में और एक तबका तो बहुत ऊपर है, एक तबका बिल्कुल नीचे. ये हमारी सोच नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की. और एक वेलफेयर स्टेट हो जहाँ पे सबके अधिकार हों, जहाँ पे सबकी एक एक बेंचमार्क इनकम हो जिससे नीचे उसकी इनकम नहीं जा सकती है, और एक इक्वालिटी हो, एक जो हम लोग समझते हैं ना इकोनॉमिकल इक्वालिटी, वो हो. उस चीज़ को अचीव करने का एम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, राइट. तो एम इज टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट, देन टू प्रोवाइड अ लिंक between the political democracy in fundamental rights and the socio-economic democracy envisioned by the framers, right? So this is about the origin of directive principles of state policy. It was borrowed from the Irish Constitution. The aim was to create a welfare state and to provide a link between the political democracy, जो कि fundamental rights में mentioned है, and the socio-economic democracy which is envisioned by the framers, right? Now let's talk about certain key features of directive principles of state policy. Like क्या क्या इसकी characteristics है, major क्या है, what all about directive principles of state policy is important for your CLAT exam. So first thing is that it is non-justiciable,
ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। कल को आप सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाते हो और ये बोलते हो कि ये डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो नहीं करवा पाएगा, बिकॉज दीज आर जस्ट गाइडलाइंस। देन पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, कि स्टेट को कुछ पॉजिटिव करने के लिए, मतलब ऑब्लिगेशंस इसमें जो मतलब मेंशन्ड है चीज़ें ऑब्वियसली, तो वो स्टेट के लिए सर्टेन पॉलिटिकल पॉजिटिव ऑब्लिगेशन से जो उन्हें करके देना है आगे, ठीक है। देन सप्लीमेंट एंड बैलेंस फंडामेंटल राइट्स, फाइन। देन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनफोर्सेबल राइट, यस, ये भी एक चीज़ है स्टूडेंट्स। फंडामेंटल राइट्स इन द फ्यूचर, आई मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो फ्यूचर में एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट भी बन सकता है थ्रू लेजिस्लेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका आर्टिकल 45, ठीक है, विच डिस्कसेस अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इट बिकेम आर्टिकल 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो यानी कि आर्टिकल 45 आपका जो एजुकेशन मिलनी चाहिए अर्ली चाइल्डहुड से ही किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को, ये पहले एक डीपीएसपी हुआ करता था, बट थ्रू लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने इसको एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था, विच वॉज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। तो आर्टिकल 45 वॉज लेटर ऑन मेड टू आर्टिकल 21A, विच टॉक्स अबाउट योर राइट टू एजुकेशन, राइट। सो दिस इज सर्टेन, दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर रिलेटिंग टू DPSP, सो मेक श्योर कि आपको ये पता हो, एंड आई बिलीव आपको पता ही होगा अभी तक। वी आर, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक, सो वी आर जस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ रिविजन, क्विक रिविजन, वी आर जस्ट डूइंग अ क्विक रिविजन। सो नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP से एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो एज वी ऑल नो कि आर्टिकल 36 से 51 तक इट टॉक्स अबाउट DPSPs, ठीक है। अब हर DPSP की एक अपनी सोच है, ठीक है। तो वो सोच की क्या क्या कैटेगरीज है, सो द कैटेगरीज आर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, विच टॉक्स अबाउट आपका जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स बेसिकली टॉक्स अबाउट योर सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे यू नो एक जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास ऑफ पीपल है वो, और यू मीन जो क्लास काम करवाती है वो ऑलमोस्ट बराबर लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज सोशलिस्ट थिंकिंग, जहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग नहीं होते हैं और वर्किंग क्लास को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और सब एक बराबर होते हैं। देन गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो गांधी जी के विचारधारा से थोड़ा रखता था रिलेशन। देन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। देन बेसिकली लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इट टॉक्स अबाउट योर लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, नॉट एक डेमोक्रेसी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेमोक्रेसी है। देन देर इज़ लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ पे सबको मौका मिले, सबकी बारी आए, विमेंस के भी विमेंस को भी वोटिंग का अधिकार हो। तो दैट इज़ अबाउट योर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, दैट ऑल कम्स अंडर दिस हेडिंग, राइट। देन आपका तो अभी इसमें क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम्पल्स क्या है, कॉमन थीम्स क्या है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो आई हैव मेड दिस टेबल स्पेसिफिकली टू एंश्योर कि आपका ना क्विक रिवीजन हो जाए सारी समझ के साथ साथ। सो एनीवन हु इज वाचिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दे कैन ऑल्सो गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट लॉ, व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर टुडे, एंड anyone who has already done this topic, as most of you have already done, I know, तो आप लोगों को भी ना एक डीपर एनालिसिस, आपके कंसेप्ट्स का एक डीपर रिवीजन हो जाए। सो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव इन हियर। सो द फोकस ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आर दैट इट एम एट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी। इट एम्स एट सोशल, यानी कि सब लोग सोशली बराबर हो, सबको बराबर हक हो, ठीक है, बराबर। आज कहने को ऑन पेपर्स ये सबको बराबर हक है, बट वी ऑन लो कि अगर किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली के, अगर किसी के घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है तो कैसे उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं या तुरंत उनके दर पे सब उन्हें मिल जाता है। और अगर वही कोई गरीब तबके का कोई अगर बच्चा है, या कोई गरीब तबके का कोई परिवार है, या कोई वैसा परिवार है जिसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उनके घर में कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी मेडिकल इशू होता है, तो कैसे हॉस्पिटल्स में जाना, वहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ जाना, परेशान होना, फॉर्म भरना, उसके बाद में एडमिट ना करना। तो मतलब वी स्टिल डोंट हैव दैट सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी इन हियर, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, एनीवेज, let's just talk about the socialist principles of
DPSPs. So they aim at social and economic justice and equality. सबको, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं है, एक बराबर लेवल पे हो सब लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल्स आर आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A. अब ये सारे आर्टिकल्स भी हम लोग गो थ्रू करेंगे. देन द कॉमन थीम इज टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, to right to work, equal pay, human conditions, worker participation, right? Then Gandhian principles किस बारे में बात करते हैं? It reflects महात्मा गांधी's ideals of self reliance and rural welfare. जो महात्मा गांधी का एक, जो उनकी विचारधारा थी कि हम दूसरे देशों पे ना डिपेंड हो रिसोर्सेज के लिए, इनफैक्ट हमारे पास हम खुद से कर पाए चीज़ों को, ठीक है। तो certain articles which reflect Gandhian principles, the objective of those articles is to make sure कि Gandhi's ideas are properly being reflected and the ideals of self-reliance and rural welfare. का गांव का विकास, गांधी जी की ये एक ज़रूर सोच थी कि गांव पे, मतलब अगर ट्रू डेवलपमेंट करना है तो आपको एकदम विलेज लेवल पे करना होगा, तभी वो एक ट्रू डेवलपमेंट कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका रूरल ही नहीं डेवलप हो पा रहा है तो देयर इज no point in development, right? So the articles which reflect Gandhian principles are article 40, 43, 46, 47, 48. So village panchayats, cottage industries, promotion of weaker sections and or prohibition, then cow protection. So ये सारे के सारे आपके चीज़ें हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करती है। देन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, आई बिलीव इसमें काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि किस टाइप के DPSP, इसमें कौन से आर्टिकल्स इसमें आएंगे। जैसे कि आपका आर्टिकल 44 विच टॉक्स अबाउट UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट? सो इट प्रमोट्स आइडियल्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. And the articles, some of the examples of the articles which are, reflect the liberal intellectual principles are article 44, 45, 48A, 49, 50, 51. All right. So the common theme here is that uniform civil code, all right, free education, environment, heritage, separation of powers, international peace. So these are liberal intellectual principles. All right. Now this is a detailed table of DPSPs and all the articles are being discussed here, 36 to all the 51, and one by one we'll have a quick go through with every article. So article 36, it defines state. ऑल राइट, तो सर 36, 37 तो DPSPs होता क्या है और DPSP के क्या फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करता है। तो आर्टिकल 36 इट डिफाइंस स्टेट फॉर पार्ट 4. स्टेट मतलब कि अंडर आर्टिकल 12 जो स्टेट है, तो फॉर पार्ट 4 सेम एज इन आर्टिकल 12. द पर्पस, इट क्लैरिफाइज द स्कोप ऑफ DPSPs, ठीक है। आर्टिकल 36 इट talks about the scope of DPSPs. Then practical, इसमें कोई जरूरत नहीं है एग्जाम्पल की. Then article 37 it says that DPSPs are not enforceable by courts but are fundamental in governance, ठीक है। तो DPSP का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि they are not enforceable by courts but they are fundamental in governance. Then the purpose of article 37 is to establish nature and significance of article 36, ठीक है। आर्टिकल 36 क्या था, जो DPSP को डिफाइन कर रहा था। आर्टिकल 37 क्या, इट एस्टेब्लिशेस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 36. देन इट हैज बीन कोटेड इन मैनी जजमेंट्स. देन आर्टिकल 38 जहां से पहला DPSP अब स्टार्ट हुआ है. सो द आर्टिकल 38 इट टॉक्स अबाउट स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मिनिमाइज इक्वालिटीज. सो स्टेट का सबसे पहला काम क्या होगा, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, कि वेलफेयर लोगों का भला प्रमोट करा जाएगा एंड इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज किया जाएगा, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ऑब्वियसली सोशलिस्ट कैटेगरी में आ रहा है. देन द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल 38 इज टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने कभी कुछ किया, क्योंकि ये तो नॉन जस्टिसेबल है, गवर्नमेंट के ऊपर है, वो इसको चाहती है इम्प्लीमेंट करना है नहीं चाहती है, तो क्या कभी किया है, यस किया है. उस आर्टिकल 38 को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान लेकर आया है, वेलफेयर स्कीम्स लाता रहता है, जो भी लाडली बहन योजना, लाडली दीदी योजना, लाडली दादी योजना, तो ये सब इसी आर्टिकल 38 के अंडर ही आती हैं आपके, ठीक है. देन 5 ईयर प्लान, अगर आपको पता हो कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान आते थे, जैसे अभी नीति आयोग आ गया, पहले 5 ईयर प्लान्स आते थे, जो सोवियत रूस से हमने USSR से के पास जो 5 ईयर कंसेप्ट है डेवलपमेंट के लिए, वही हम लोग लेकर आए थे हमारे यहाँ, ठीक है. तो इट वॉज ऑल डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 38. देन Article 39, it
talks about the state to direct policy towards securing right to livelihood, equal pay, resource and distribution. तो आर्टिकल 39 किस बारे में बात कर रहा है? इट डायरेक्ट्स द स्टेट, ये स्टेट को निर्देश देता है किस चीज़ के? टुवर्ड्स सिक्योरिंग राइट्स टू लाइवलीहुड, कि लोगों के पास रोजगार के अधिकार होने चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए, ठीक है? जो भी हमारी कंट्री के रिसोर्सेज है वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. देन अगेन इट इज़ अ सोशलिस्ट मतलब socialist principle reflecting article. Then the purpose of this article is to ensure equitable economy and इसके लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट आज तक कुछ गवर्नमेंट ने किया? तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाई है गवर्नमेंट, लैंड रिफॉर्म्स लाती रहती है, ठीक है? तो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 39. देन देयर इज आर्टिकल 39A. ऑलराइट, 39A, ए मीन्स कि अमेंडमेंट के बाद ये ऐड किया गया है. तो आर्टिकल 39A इट टॉक्स अबाउट प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. इट टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड लोगों को मिलनी चाहिए, राइट? तो अगेन इट इज अ सोशलिस्ट कैटेगरी ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल इज टू एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, राइट? तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो हमारा आ रखा है, जिसके थ्रू लोगों को फ्री लीगल एड दी जाती है गांव-गांव जा करके, वो इसी आर्टिकल को जस्टिफाई करने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाई थी 1987 में. देन आर्टिकल 40 इट टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है? अब विलेज पंचायत से मतलब ये किस कैटेगरी का प्रिंसिपल हो गया? गांधीयन प्रिंसिपल का, राइट? तो ये गांधीयन कैटेगरी का हो गया. एंड देन इट टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, की जो ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करे उसको स्ट्रेंथन किया जाए. वो जितनी स्ट्रेंथन होगी उतना ही ग्राउंड पे काम अच्छे से होगा. और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो ग्राउंड पे जब तक नहीं ठीक से काम करेंगी तब तक उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा. जस्ट टू मेक श्योर कि ग्राउंड तक कोई रिसोर्स फॉलो उस चीज़ के कि कोई भी ऊपर से जो गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस करी है, कोई भी रिलीफ अगर अनाउंस किया, तो वो ग्राउंड तक अगर आप चाहते हो ना कि ग्राउंड तक हर बंदे तक वो पहुंचे, तो उसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है. तो दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 40. गांधीयन सोच का एक वो है आपका DPSP है. एंड देन 73rd अमेंडमेंट अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा हो, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, तो इट टॉक्स अबाउट पंचायत. एंड 74th अमेंडमेंट जो होता है इट टॉक्स अबाउट विलेज म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है? तो 73rd अमेंडमेंट जब होता तो पंचायत का कंसेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था. एक सिस्टम आया था कि कैसे इलेक्शन होगा, कितने कितने टाइम में होगा, अगर बीच में गवर्नमेंट गिर जाती है, पंचायत गिर जाती है तो क्या होगा. सिमिलरली जब 74th अमेंडमेंट हुआ था तो यही चीज़ फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ होती है. म्यूनिसिपैलिटीज़ इंट्रोड्यूस किया था, उसमें क्या पावर होती है, कैसे इलेक्शन होता है. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने का बात करता है हमारा आर्टिकल 40, राइट? देन आर्टिकल 41 इट टॉक्स अबाउट योर राइट टू वर्क, योर एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस. तो देन अगेन दिस इज योर सोशलिस्ट थॉट ऑफ आर्टिकल. देन इट इज़ फॉर द पर्पस क्या इसका? वेलफेयर फॉर अनएम्प्लॉयड, सिक एंड डिसेबल्ड, ठीक है? तो इसके लिए क्या आज तक गवर्नमेंट ने काम किया है? बिल्कुल किया है. महात्मा गांधी ये जो आप लोगों ने स्कीम सुनी होगी, महात्मा गांधी रोजगार योजना जो है मनरेगा के नाम से चलती है. तो इसी आर्टिकल 41 के इम्प्लीमेंटेशन में ये करी गई थी. देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आया ही करती है, राइट? देन आपका आर्टिकल 42 इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव, कि यहाँ जहाँ पे भी कोई नागरिक, कोई इंसान जो काम कर रहा है तो वहाँ की कंडीशंस अच्छी हो, ठीक ठाक होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए. ये नहीं कि एकदम मतलब बिल्कुल बर्बाद हालत आपने कर रखी है ऑफिस की या कार्यालय की या जहाँ पे भी बंदे काम करने आ रहे हैं और वहाँ पे आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो काम करें. तो ऐसा नहीं. आर्टिकल 42 इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए औरतों को, ठीक है? Then again it is a socialist thought of article and it talks about labor welfare. So maternity benefit act इसको फॉलो करने के लिए लाया गया था. अभी यह सब आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट ये मैं एग्जाम्पल्स की तरह लाया कि किन आर्टिकल्स पे गवर्नमेंट ने, क्योंकि जैसे मैंने ये मेंशन कर दिया कि नॉन जस्टिसेबल होता है नेचर में, तो कहीं आपको ये ना लगे कि गवर्नमेंट ने आज तक कुछ करा ही नहीं होगा. जब जस्टिसेबल ही नहीं तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी है करने की. बट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है? गवर्नमेंट ने पहले से करती आ रही है, शुरुआत से ही करती आ रही है, और ये इसीलिए मैं ये सब ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए ये फैक्ट्स, ठीक है? देन आर्टिकल 43
इट टॉक्स अबाउट योर लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्कर्स, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के वर्कर हैं उनको ठीक ठाक मेहनताना मिलना चाहिए और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए वर्कर्स को, ठीक है। इट इज़ अ गांधीयन थॉट ऑफ आर्टिकल। देन इट्स ऑब्जेक्टिव इज वर्कर वेलफेयर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोशन मिले, तो इसी के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लाए था, हमारा लेजिस्लेशन ला चुका है, खादी प्रोग्राम्स लाता रहता है, राइट। देन आर्टिकल 43A, ठीक है, आर्टिकल 43A टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि जो वर्कर्स है, जो काम करने वाला तबका है, वो भी मैनेजमेंट में पार्ट लिया करे इंडस्ट्रीज के, राइट। तो दिस इज अ सोशलिस्ट थॉट ऑफ योर आर्टिकल एंड इट टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया। देन आर्टिकल 44 इट टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म कोड, सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, ठीक है, जो अभी सबसे ज़्यादा डिस्कशन में पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा डिस्कशन पे है। स्टेट गवर्नमेंट्स इसको अपने लेवल पे तो एग्जीक्यूट करा रही है, जैसे गोवा में अभी यूसीसी चालू हो चुका है, उत्तराखंड में चालू हो चुका है, बट देन देर इज़ नो union based code till now. We have that code but it is not been implemented till now, ठीक है। बट अभी इस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होने लग गया रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट 1 year, तो हो सकता है वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेन important code being announced by the government or important compulsory implementation of this as well within the next 1-2 years. It is highly possible. Then it is from which thought of article is this? Liberal intellectual. So it is कॉमन पर्सनल लॉज। इट टॉक्स अबाउट बेसिकली स्टूडेंट्स, अभी हमारी कंट्री में क्या है ना कि वी हैव वेरियस रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, राइट। तो हमारे यहाँ पे पर्सनल लॉज गवर्न करते हैं काफ़ी चीज़ें, कि मैं मेरी ज़मीन किसको दूंगा, कैसे दूंगा, मेरी शादी कैसे होगी और मेरी शादी के क्या रिचुअल्स होंगे, ये सब ना रिलीजन टू रिलीजन आज भी हमारी कंट्री में डिफ़र करता है। एक हिंदू की जो शादी है उसको गवर्न करने के अलग लॉज हैं, एक इस्लामिक मैन की या इस्लामिक वीमेन की जो शादी है उनको गवर्न करने के अलग लॉज हैं, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में अलग लॉज हैं। तो अभी भी हम लोग ना बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं। कोई एक रिलीजन कहता है कि येस 4 मैरिजेस आर अलाउड, कोई एक रिलीजन कहता है कि सिर्फ पॉलीगैमी इज़ पनिशेबल। तो एक ही कंट्री में, एक ही लैंड में कैसे अलग अलग लॉस फॉलो हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्सनल लॉस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। बट इफ़ वी हैव टू डेवलप, इफ़ वी हैव टू बिकम वन, ठीक है, हमें यूनाइट होना है, हम लोग को वी आर अ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ठीक है, पीपल आर प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिलीजन्स बट देन वी नीड सर्टेन लॉज टू टेक ओवर पर्सनल लॉज, जो पर्सनल लॉज का गवर्नेंस ख़त्म कर पाए, बिकॉज पर्सनल लॉज की वजह से आज भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी कह सकते नहीं है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, एंड यू कैन नॉट फोर्स देम कि नहीं एक ही चीज़ मानो। तो वी कैन फोर्स देम इफ़ वी कैन legislate it, and to legislate it we have been provided with article 44 which talks about uniform civil code for citizens to remove common personal laws। ongoing debate अभी चल रही है, गोवा में यूसीसी लागू हो चुका है ऑलरेडी, राइट। Then article 45 it talks about early childhood care and education for children below 6 years, right? So then again it is a liberal intellectual thought of article। then education development इसका objective है, and आंगनवाड़ीज, ICDS जो गवर्नमेंट बनाती है वो इसी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाती है, राइट। देन आर्टिकल 46 इट टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग एजुकेशनल एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड वीकर सेक्शन, राइट। तो आर्टिकल 46 बात करता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए SC, STs में और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वहाँ पे, राइट। देन इट इज़ अ गांधीयन थॉट ऑफ आर्टिकल। इट टॉक्स अबाउट सोशल जस्टिस, तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी, स्कॉलरशिप्स वगैरह SC, STs, OBCs के लिए आया करता है। देन आर्टिकल 47 इट टॉक्स अबाउट रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, की जो पब्लिक खाना खा रही है उसमें न्यूट्रिशन का लेवल अच्छा होना चाहिए, पब्लिक की हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। एंड इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिटिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है। देन इट इज़ अ गांधीयन थॉट ऑफ प्रिंसिपल। इट टॉक्स अबाउट हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो मिड डे मील, ठीक है, ताकि बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ पाए, ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए लाया गया मिड डे मील की स्कीम्स। प्रोहिबिशन लॉज आते रहते हैं, जैसे बिहार में शराब बंद है, गुजरात में शराब बंदी है, तो ये सब आर्टिकल 47 को के
थॉट के अराउंड होता है, उस आर्टिकल 47 को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। देन आर्टिकल 48 इट टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, ठीक है। तो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जो गौ हत्या होती है वो रोकनी चाहिए, और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, राइट। तो इट इज़ अ गांधीयन थॉट ऑफ आर्टिकल एंड इट टॉक्स अबाउट रूरल इकोनॉमी एंड एनिमल वेलफेयर। गांधी जी ना मतलब रूरल को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल रहते थे, बहुत ज़्यादा रूरल इंडिया के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा विजन था, राइट। तो इसीलिए वो उनके, आप देखो तो वो रूरल इकोनॉमी के प्रमोशन में बहुत ज़्यादा पुश करते थे, और जिन चीज़ों से रूरल इकोनॉमी पुश होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर का अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा, एनिमल हस्बेंड्री, लोग जानवर तो पालते हैं, अगर आप उनको थोड़ा रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, अपने जानवर की देख रेख कर पाएँ, अपने एनिमल्स को वो और अच्छे से ऐसा खाना पीना खिला पाएँ जिससे उनकी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़े। तो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट दिस, एंड काउ प्रोटेक्शन लॉज जो आया करते हैं वो सब इसी आर्टिकल को एग्जीक्यूट कराने के लिए आते हैं, ठीक है। देन आर्टिकल 48A it talks about protection and improvement of environment and forest, ठीक है। then it is a liberal intellectual thought of article, it talks about environmental protection and environmental protection act 1986 आया हुआ है इसी को justify करने के लिए, right। then article 49 protect our monuments and national heritage, ठीक है। जो हमारे कई साल पुराने जो monuments हैं उनको प्रोटेक्ट करें, जो हमारे देश की धरोहर है जिसकी वजह से आज हमें जो एक आइडेंटिटी मिली है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो अगेन इट इज अ लिबरल इंटेलेक्चुअल थॉट ऑफ आर्टिकल एंड इट टॉक्स अबाउट कल्चरल प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ASI हेरिटेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बॉडी है, हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स है, ये सब इसी आर्टिकल को जस्टिफाई करने के लिए बना रखे, ठीक है। देन आर्टिकल 50 इट टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज, कि जुडिशरी जो पब्लिक सर्विसेज में एग्जीक्यूशन के काम है, जो एक IAS या IPS के काम है, कि कोई भी अगर स्कीम गवर्नमेंट की आई है तो उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूट कराना, उससे दूर रहे जुडिशरी। जुडिशरी का काम सिर्फ जस्टिस देना, जस्टिस करने का है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्री में कोई स्कीम क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसको कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा, उससे जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है। तो आर्टिकल 50 इसी बारे में बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। इट इज अ लिबरल इंटेलेक्चुअल थॉट ऑफ आर्टिकल एंड इट टॉक्स अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेट सर्विसेज। इसीलिए आप देखो जो जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं ना, कोई भी जुडिशियल एग्जाम अभी तक देखो आप नेशनल लेवल का नहीं होता है। जैसे UPSC होता है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जिससे आप IAS IPS IFS बनते हो, ऐसे ही स्टेट लेवल के PCS का एग्जाम होता है जिससे आप SDM बनते हो, ठीक है। तो यानी कि जो एग्जीक्यूशन वाले पद के जो कह सकते हैं, जो एग्जीक्यूशन वाले पद हैं, जैसे कि IAS हो गया, ठीक है। तो एक IAS भी है, IAS इज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज IAS, ठीक है। और फिर एक SDM होता है जो स्टेट सर्विसेज के थ्रू अपॉइंट होता है। तो एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, उससे भी आप IAS लेवल के लोग, मतलब IAS सेलेक्ट करते हो। फिर ऐसे स्टेट का भी PCS होता है, उससे भी आप IAS लेवल से नीचे का ही बंदा सेलेक्ट करते हो, लेकिन वो स्टेट की सर्विसेज, स्टेट का एम्प्लॉय होता है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, ठीक है। और काफ़ी मतलब सर्विस के प्रमोशन के बाद वो IAS में प्रमोट भी हो जाता है। बट एक स्टेट का भी एग्जाम होता है और एक सेंटर का भी एग्जाम होता है, दोनों एग्जाम होते हैं। ऐसे आप जुडिशरी में देखो तो हमेशा स्टेट का एग्जाम होता है, कोई भी सेंट्रल लेवल पे भी जुडिशियल एग्जाम नहीं आया, ठीक है। तो उसको ना आने का यही पर्पस है कि बेसिकली इट टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देन आर्टिकल 51, the last article of directive principles of state policy. So it talks about promoting international peace and security and respect for international law. Liberal intellectual thought का article है and it talks about global cooperation. सबका साथ सबका विकास जो हम लोग बात करते हैं वो article 51 से ही इंस्पायर्ड है। तो इंडियाज़ रोल इन जो UN में हमारा है, जो हम लोग NAM, जो भी हमारी जो हम लोग जिन भी इंटरनेशनल संस्थाओं के पार्ट हैं, वो इसी आर्टिकल 51 की इम्प्लीमेंटेशन में है, राइट। देन मूविंग अहेड, डिफरेंसेस क्या है DPSPs और फंडामेंटल राइट्स में, मेजर डिफरेंसेस क्या है, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस सबको पता है कि DPSPs आर नॉन इन्फोर्सेबल, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल। बाकी और वो तो आप मतलब हम लोग जो बात करते हैं वो उसकी एनफोर्सिबिलिटी के पे है, और किन चीज़ों पे हम डिफर कर सकते हैं
फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपीस को एक बार वो देख लेते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो फंडामेंटल राइट्स इट हैज़ अ नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट. स्टेट पे नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, कि आप ये नहीं कर सकते हो जिससे किसी का फंडामेंटल राइट एवरेज हो, आप ऐसे लॉ नहीं बना सकते हो, ऐसी स्कीम्स नहीं बना सकते हो, राइट. तो दे आर बेसिकली नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट, कि आप रिस्ट्रिक्ट करो खुद को ये चीज़ें करने से, ठीक है. देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे आर पॉजिटिव डायरेक्शन टू द स्टेट. ये स्टेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन है कि आप लोग अपने लॉज ऐसे बनाइए, ठीक है. देन एनफोर्समेंट की बात कर लेते हैं. तो यस, हमने बात करी कि दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन एनफोर्सेबल, ठीक है. आर्टिकल 37 में प्रोवाइडेड है. 36 इट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी. 37 इट टॉक्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक और एनफोर्सिबिलिटी ऑफ डीपीएसपी, राइट. देन एम क्या है फंडामेंटल राइट्स का, क्या उद्देश्य क्या होता है? तो बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इट प्रमोट्स कलेक्टिव वेलफेयर, ठीक है. जो फंडामेंटल राइट है वो आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट कर रहा है ना. आपको कोई फंडामेंटल राइट अगर एब्रिज हो गया तो आप कोर्ट गए, उसको इन्फोर्स कराया है, तो आपने अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर लिया. लेकिन जो डीपीएसपी है वो कभी भी इंडिविजुअलिटी पे बात ना कर करके एक कलेक्टिव बात करता है कि सबका वेलफेयर हो, सारे स्टूडेंट्स बचपन से पढ़ पाए, राइट टू एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है. न्यूट्रिशन लेवल बढ़े तो सबका बढ़े, किसी एक का नहीं, ठीक है. या फिर आपका यूसीसी हो तो सबके लिए कॉमन लॉज हो, ये नहीं कि इनके लिए ये पर्सनल, इनके लिए ये अलग हो, ऐसा ना हो, ठीक है. तो जो डीपीएसपीज है इट प्रमोट्स कलेक्टिव वेलफेयर. देन अबाउट द स्कोप, तो फंडामेंटल राइट्स हैव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. इट टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इक्वालिटी होनी चाहिए. एंड इट टॉक्स अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशली और इकोनॉमिकली लोग बराबर होने चाहिए. इट टॉक्स अबाउट दैट डेमोक्रेसी. देन कन्फ्लिक्ट क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल. अगर फंडामेंटल राइट्स और कभी डीपीएसपीस के बीच में कोई अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, ठीक है. ऐसा चंपकम दोरई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया था, ठीक है. देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर बैलेंस्ड बाय बेसिक स्ट्रक्चर, जो मिनर्वा मिल्स में हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी, राइट. देन सर्टेन लैंडमार्क जजमेंट्स है, एक बार वो देख लेते हैं. वी आर नॉट गोना डिस्कस दीज लैंडमार्क जजमेंट्स इन डिटेल, ठीक है, बिकॉज वी आर जस्ट कवरिंग दो सर्टेन थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरई राजन, it was in the year 1951 and the key holding of the Supreme Court was that fundamental rights will override DPSPs. अगर आप लोग चाहोगे तो you can just let me know in the comment section if you want a detailed analysis of all these three case laws, जिसमें हम फैक्ट्स, पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सब डिस्कस करेंगे, ठीक है. हालांकि ज़रूरत नहीं है, आपसे एग्जाम में नहीं कोई पूछेगा, बट स्टिल इफ यू वांट फॉर मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो अपॉन दैट ओनली, राइट. तो अभी फिलहाल केस देख लेते हैं. स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरई राजन इन द ईयर 1951 एंड इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स ओवरराइडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट. देन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन द ईयर 1973. It talks about the harmony between fundamental rights and DPSPs and that DPSPs is part of the basic structure, ठीक है. DPSPs basic structure का part है. इसको कल को ऐसा नहीं कि संसद में ला के एकदम अमेंडमेंट करके पूरा बदल दो, नहीं बदल सकते, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एज हेल्ड इन द ईयर 1973 इन दिस केस केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. देन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में क्या कोर्ट रूलिंग पे आती है कि there will be a balance between fundamental rights and DPSP is essential, neither can override the other, ठीक है. कोई किसी को ओवरराइड नहीं कर सकता है, बट हाँ प्रैक्टिकलिटी में इफ देर इज एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी तो फंडामेंटल राइट विल ओवरराइड दैट, राइट. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. एक बार आप ये तीनों केसेस देख लेना और बस इतना देख लेना कि क्या होल्डिंग थी. जैसे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरई राजन में होल्डिंग ये थी कि फंडामेंटल राइट्स विल ओवरराइड डीपीएसपीस. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये बात हुई थी कि एक हार्मनी होगी, ठीक है, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस एंड दैट डीपीएसपीस आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन in Minerva Mills versus Union of India in the year 1980 it was decided by the Supreme Court that there will be a balance between fundamental rights and DPSPs is essential and neither can override the other, right. चलो, तो कौन सी जजमेंट में क्या कहा था ये याद रखना बस, कौन से केस में, फाइन. अब इसका मॉडर्न रेलेवेंस देख लीजिए. जैसे कि वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक आपका मनरेगा जो होता है, हमने डिस्कस किया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल
आपका इकोनॉमिकल ऐसे करके कुछ फुल फॉर्म है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट राइट नाउ, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट कुछ करके ऐसे ही है, ठीक है। देन वेलफेयर प्रोग्राम्स जैसे कि मनरेगा सबने सुन रखा है। देन मिड डे मील, फ्री लीगल एड, राइट, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दे ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम डीपीएसपी आइडियल्स, राइट। तो ये कहना गलत है कि क्योंकि अगर डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सिबल है तो उस पर गवर्नमेंट काम नहीं करती है। गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के टाइम से ही डीपीएसपी पे काम कर रही है। और ये हमने यहाँ पे अभी देखा भी था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमने जो भी चीज़ें देखी हैं ये क्या है, दीज आंगनवाड़ी ICDS, दीज आर बेसिकली यू नो एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज आर्टिकल्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये नॉन इन्फोर्सेबल है तो गवर्नमेंट ने आज तक काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस से ही काम करा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो ये सारा का सारा आपका इनकी इन्फोर्समेंट में ही हुआ है, फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इन्फोर्समेंट में ही वो सब किया गया है, राइट। देन आपका और यहाँ पे जैसे कि हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट जो आ रखा है नालसा, वो भी इसी के इम्प्लीमेंटेशन में है। देन एनवायरमेंटल लॉज आर्टिकल 48A में प्रोवाइडेड है, ठीक है। पंचायती राज आर्टिकल 40 के इम्प्लीमेंटेशन पे, इक्वल पे आर्टिकल 39D के इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। तो यही हमारा स्टूडेंट्स आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था। हमने क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट था वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। अपार्ट आउटसाइड ऑफ दिस नथिंग इज गोना बी आस्क्ड। इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम डीपीएसपी इन योर एग्जाम तो वो इतने ही कंटेंट से आएगा, तो मेक श्योर टू रिवाइज इट वेरी प्रॉपरली। चाहो तो रिपीट में थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी ये वीडियो देख सकते हो आप। Very soon we'll be coming with passage based questions on DPSPs only, so stay tuned for that. Let me know in the comment section if you have any doubt and I'll be more than obliged to help you in your preparation for CLAT 2026. And you can check out our crash course as well, NLU practice batches as well, and our iCLAT mock test series as well, to strengthen your practice and to refine your preparation at the last stage. And do subscribe to our YouTube channel and do like our video as well, and stay tuned. All the very best for your preparation.